So an application runs on Amazon EC2 instances and private subnet. एक application जो है वो EC2 instance पे चल रही है और private subnet में चल रही है. The application needs to access an Amazon DynamoDB table. What is the most secure way to access the table while ensuring that the traffic does not leave the AWS network? तो application को एक एप्लीकेशन जो है उसको यूज करना है Amazon DynamoDB टेबल सबसे सिक्योर वे में, और हम नहीं चाहते कि वो ट्रैफिक जो है वो AWS के नेटवर्क को लीव करे, यानी वो इंटरनेट पे जाए. तो आपको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं VPC endpoints. So VPC endpoint क्या करता है? VPC endpoint will give you a free route, private route to reach to those services which are global services. So DynamoDB is also a global service like S3. So answer is A, which is use VPC endpoint to DynamoDB, right? So आप देखेंगे तो आपको इसी चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस टॉपिक पे मिलेंगे एग्जाम में. आई एम नॉट सेइंग द सेम क्वेश्चन विल कम, बट यस आपको सेम इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा. अब ये देखते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, सभी के आंसर्स तो आए गए हमारे सामने. नाउ अभी देखते हैं. So a company has deployed an API in a VPC behind an internet-facing application load balancer. तो कंपनी ने एक API deploy की है जो कि एक VPC में है behind a internet-facing application load balancer. The application that consumes the API as a client is deployed on second account. दूसरे अकाउंट में जो एप्लीकेशन उस API को यूज करेगी, और वो प्राइवेट सबनेट में है बिहाइंड ए नेट गेटवे. तो नेट गेटवे से इंटरनेट पर जा सकता है, राइट? When request to the client application increases, the NAT gateway costs are higher than expected. भाई NAT gateway एक मैनेज सर्विस है, उसके थ्रू जितना डेटा इन एंड आउट जाएगा उसका आपको पैसा देना पड़ेगा. So solution architect has configured the ALB to be internal. Solution architect ने ALB को कॉन्फ़िगर किया है internal. Which combination of architectural changes will reduce the NAT gateway cost? NAT gateway की कॉस्ट कैसे कम होगी? तो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं आपके पास दो अकाउंट हैं, सेकंड अकाउंट, राइट? और अगर आपके पास यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, if you are having different accounts, right? Second, so if you are having different accounts, the best thing is that you can do VPC pairing. You can go with VPC pairing also, right? Just a second. So we can go with VPC pairing. That will makes it easier that these applications will be able to talk to each other. But you can see we have to select two answers. So second could be answer D. Configure a private link between API and this, right? Okay. Same question. Let's take questions on. We'll take this question and then we'll talk about EFS. An application runs on Amazon EC2 instances in the private subnet. The application needs to access an Amazon DynamoDB table. This is the same story. What is the most secure way to access the table while ensuring that the traffic does not leave the AWS network? So obviously answer is A, VPC endpoint for DynamoDB. If anyone is having any doubt in these, let me know. Starting with EFS. Let's take this question. So a company has several business systems that requires access to data stored in a file share. The business systems will access the file share using the several SMB protocols.
The file share solution should be accessible from both the company's legacy's on-premises environment and the AWS environment. Which service mode the business requirement, which services, okay. So अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कंपनी के पास several business systems हैं, उनको data use करना है from a shared storage. The business system will access the file share using SMB, Samba protocol use करनी है. तो कल हमने जब EFS पढ़ा था तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज की थी? तान्या, कौन सी प्रोटोकॉल यूज की थी कल? आज तो बड़े कम स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसा क्या हो रहा है आज? Nobody's there actually. मौसम बहुत खराब चल रहा है. सुरेंद्र, कौन सी प्रोटोकॉल हमने कल यूज की थी? Which protocol we have used yesterday? EFS में कौन सी प्रोटोकॉल यूज की थी? NFS. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं SMB. तो अगर आप लिनक्स जानते हैं तो आपको पता है ये सांबा प्रोटोकॉल की बात हो रही है और NFS. So NFS systems are always designed for whereas Samba systems are designed for Windows, Linux, both, right? For Windows, we are having FSX. So the first thing is that we will be using FSX. FSX you will be using. And the second is we can go and use storage gateway, file gateway. So storage gateway is a service which we are going to learn in the coming few lectures. So storage gateway हम पढ़ेंगे. But B, FSX आपको याद रखना है Windows के लिए है और EFS Linux servers के लिए है, right? So इस पे भी 2-4 questions आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. अब ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं. देखिए. So a solution architect must migrate a Windows Internet Information Service web application to AWS. The application currently relies on file share hosted in the user's on-premises NAS. जो on-premises NAS है, वहाँ पे storage है. Solution architect has proposed migrating the IS web servers, which replacement to the on-premises file share is most reliable and durable. तो ऊपर इसने सिर्फ सिनेरियो एक्सप्लेन किया. इसने बोला कि IIS सर्वर है जो ऑन प्रेमाइसेस में चलता है, NAS का यूज करता है, उसको हमें क्लाउड पे माइग्रेट करना है. तो क्लाउड में कौन सी सर्वर यूज होगा? अब NAS के इक्विवेलेंट कौन सी है विंडोज के लिए? FSX, राइट? किसी कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं. सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सब आपके सामने आने वाला है. अभी नहीं तो 1 महीने 2 महीने मैक्स में, राइट? अगर आप इंटरव्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए. फिर से विंडोज आ गया. सो विंडोज आते ही FSX, राइट? तो मेरे सामने जब भी एग्जाम होता है तो मैं, अगर विंडोज आता है तो मैं डायरेक्टली FSX लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है काफी बार. A company has a Microsoft Windows based application that must be migrated to AWS. This application requires the use of shared Windows file system attached to multiple EC2 Windows instances. What should a solution architect do to accomplish this? What should a solution architect do to accomplish this? Right? So Windows में शेयर करना है तो पहला भी यूज नहीं होगा, दूसरा भी यूज नहीं होगा, तीसरा ही यूज होगा FSX. तो FSX is the answer. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है. .NET एप्लीकेशन चल रही है तो ऑब्वियसली विंडोज पे चलेगी. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा है तो भी FS आंसर है. यहाँ देखते हैं. Say a solution architect is working on optimizing a legacy document management application. Solution architect is actually working with this particular application. Microsoft servers, right? In an on-premises data center, the application stores a large number of files on a network file system. Share. The chief information officer wants to reduce the on-premises data center footprints and minimize the cost by moving on-premises storage to AWS. What should solution architect do to meet these requirements? तो on-premises से अगर डेटा को आपको क्लाउड में भेजना है, so in that case you will be using storage gateway. Storage gateway will be used sending data
from on-premise data center to the cloud. आइए ये देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके स्टोरेज गेटवे से रिलेटेड है, बट मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए आपको। आइए देखते हैं। A recent analysis at a company's IT expenses highlights the need to reduce backup cost. तो ऑन प्रेमाइसेस जो टीम है वो बैकअप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है. The company's CTO wants to simplify the on-premises backup infrastructure and reduce cost by eliminating the use of physical backup tapes, right? Physical जो backup tapes हैं, physical backup tapes का मतलब आपकी कौन सी स्टोरेज? फिजिकल बैकअप टेप्स का क्या मतलब है? आपकी वो स्टोरेज जो कि आप यूज करते हैं टेप ड्राइव्स में. तो टेप ड्राइव्स में हम कौन सा डेटा रखते हैं? टेप ड्राइव्स में वो डेटा रखते हैं हम जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लंबे टाइम के लिए जो डेटा रखना पड़ता है उसको आप रखते हैं टेप ड्राइव्स में. यानी वो डेटा आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल नहीं होगा. द डेटा विल नॉट बी एक्सेसिबल टू यू इमीडिएटली, राइट? तो वो डेटा आप यहाँ पे रखते हैं. So the company must preserve the existing investment on the on-premises backup application and workflow. तो कौन सा solution यूज होगा? क्लाउड में तो माइग्रेट करना ही है, बैकअप कॉस्ट रिड्यूस करनी है. तो आप गेटवे तो यूज करेंगे स्टोरेज, बट एनएफएस में ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो Amazon क्लाउड में आईस्कजी वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज होती हैं जिनको बोला जाता है VTL, राइट? तो इनको आप यूज करेंगे क्योंकि ऑन प्रेमाइसेस में जो टेप ड्राइव्स हैं उनको VTL में ही माइग्रेट किया जाता है. तो जब हम स्टोरेज गेटवे देखेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये जो डेटा है इस डेटा को हम जो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल बी मूविंग इट टू वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज ओनली. तो उसको हम वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज के ऊपर माइग्रेट करेंगे, राइट? अब देखिए सारे क्वेश्चन स्टोरेज गेटवे आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर है, एनएफएस कितना पॉपुलर है. So a company wants to replicate its data to AWS to recover in the event of disaster. कंपनी अपना डेटा को AWS में replicate करना चाहती है in the event of disaster. Today a system administrator has scripts that copy data to an NFS share. Individual backup files needs to be accessed with low latency by application administrators to deal with errors in processing. What should a solution architect recommend to meet these requirements? What should a solution architect recommend to meet these requirements? Obviously, इस केस में हम यूज करेंगे AWS स्टोरेज गेटवे, फाइल गेटवे. ये भी मैंने पढ़ा नहीं है, इसमें क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं. सी क्यों नहीं होगा आंसर? हाँ जी, उस वाले में सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा ये देखते हैं. इसमें बात कर रहे हैं नहीं, जो अभी पिछला कर रहे थे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ. इसमें कौन सा नहीं होगा? बी, सी सी सी. देखिए ये कह रहा है कि हमें डीआर बनाना है, डिजास्टर रिकवरी. तो डिजास्टर रिकवरी में आपको सेकेंड साइट पे डेटा रखना पड़ता है, और जो आपका डेटा होता है वो 3 टाइप का होता है. आपके पास होता है ब्लॉक वॉल्यूम यानी EBS, आपके पास होती है फाइल स्टोरेज विच इज योर EFS, और आपके पास होती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज लाइक टेप ड्राइव्स और S3 में डेटा जो डाल सकते हो वो. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो डीआर आपको बनाना है उसमें आपका NFS का शेयर है. NFS का जो शेयर है वो फाइल गेटवे के थ्रू जाता है. तो जब आप बनाते हो गेटवे स्टोरेज गेटवे में तो आपके 4 टाइप के गेटवे बनते हैं: फाइल गेटवे, टेप गेटवे, वॉल्यूम गेटवे और FSX गेटवे. तो 4 टाइप के गेटवे जो हैं ये आपके क्लाउड में बनते हैं. तो इसका आंसर होगा डी, राइट? क्योंकि डीआर बनाना है कोई डेटा आपको सेकेंडरी साइट पर चाहिए. तो EFS क्या करता है? EFS will be used for simultaneously replicating the data from one side to the another side. एक साइड से दूसरी साइड पे साइमल्टेनियसली डेटा रेप्लिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं.
तो देखते हैं, a solution architect must design a solution for a persistent database that is being migrated from on-premises to AWS. The database requires 64,000 IOPS according to the database administrator. If possible, the database administrator wants to use a single Amazon EBS volume to host the database instance. Which solution effectively meets the database administrator's requirement? तो ये कह रहा है कि 64,000 IOPS चाहिए है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। तो आपको आंसर करना है कि आपको आप IOPS किस में इंक्रीज कर सकते हैं। आंसर दीजिए, आप सबने आंसर देना, सबको आता है। Answered? Nobody answered. That's really nice. बताइए। तुमने आंसर दे दिया। आंसर इज बी। परफेक्ट, आंसर इज बी ऑब्वियसली। क्यों सुरेंद्र, आंसर ए कैसे हो गया? राइट, आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखें, सर बी दिया था मैंने, ए पहले वाला होगा, बोल्ड वाला बी दिया है मैंने। ठीक है, सबने बी दिया है। हाँ बी, ठीक है ठीक है। तो बी कैसे हुआ? क्योंकि देखिए IOPS अगर मैनेज करने हैं तो IOPS कहाँ पे मैनेज होते हैं? EBS में। EFS में मैनेज हो नहीं सकते हैं और किसी में मैनेज नहीं हो सकते हैं, राइट? ठीक है जी, अभी भी आप आंसर देंगे। A company is planning to migrate its virtual server-based workload to AWS. The company has internet-facing load balancers backed by application servers. The application servers rely on patches from an internet-based host repository. Which service should a solution architect recommend be hosted on the public subnet? तो क्या रहा है, company is planning to migrate virtual based workload to AWS. तो उसको virtual machines को migrate करना है AWS में, हम ऐसा समझ सकते हैं। The company has internet facing load balancer backed by application servers. तो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है, उसके पीछे एप्लीकेशन सर्वर्स लगे हुए हैं। सिंपल है, द एप्लीकेशन सर्वर्स रिलाई ऑन पैचेस फ्रॉम इंटरनेट होस्टेड रिपोजिटरी। इंटरनेट होस्टेड रिपोजिटरी से उनको चाहिए, राइट? सो which service should a solution architect recommend be hosted on the public subnet? Public hosted सबनेट में क्या क्या होस्टेड होना चाहिए? फिर से आप आंसर्स देंगे। तो आप जब आंसर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कौन कितना समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। किसी को answer, giving answer is must. Some of them are not even trying. Pooja is not trying. Tanya is not trying. दीजिए आंसर।
ओके, वी गॉट 3 आंसर्स, परफेक्ट। तो ये आंसर आए हैं मिस्टर अमित बजाज की तरफ से एंड देवेश की तरफ से। तो आंसर इज सी। तो इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में होना चाहिए। भाई 100% एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो पब्लिक सबनेट में होना ही चाहिए, इसके बिना तो आपका गुजारा होने ही वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिक सबनेट में नहीं होगा तो सर्वर्स इंटरनेट पर जाएंगे कैसे, राइट? और आंसर दिया है सुरेंद्र ने ई, ओके, आयुष ने दिया है सी। तो सी तो सभी का करेक्ट है, बट मैं दूसरा सही आंसर नहीं देख पा रहा हूँ। तो दूसरा सही आंसर जो है वो है आपका ए। आंसर इज ए, पूजा गेव द करेक्ट आंसर, परफेक्ट पूजा। फाइनली आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि नेट गेटवे तो कभी भी इंटरनेट पे जाने के लिए बनेगा ही, राइट? और वो दूसरा ये कह रहा है कि आपकी जो सर्वर्स है उनको इंटरनेट पर जाना है फॉर डूइंग इंस्टॉलेशन, पैचिंग, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड ऑल, राइट? आंसर शुड बी ए एंड सी। क्लियर? तो आप खुद समझ सकते हैं, जब एग्जाम आपके सामने आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम में जाते हैं वो कहते हैं अरे सर वो तो जो हमने पढ़ा था वही आया था। तो जो आप पढ़ोगे वही आएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप 100% यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम में तो कोई इशू है ही नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू इवन कोई भी आपके पास एग्जाम आ जाए, कोई भी इंटरव्यू आ जाए, ऑब्वियसली विल बी एबल टू आंसर इट, राइट? द ओनली थिंग इज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है आप बता दीजिए, राइट? अगर ये आपको मान लीजिए एक टॉपिक भी आपको क्लियर है, राइट, तो यही टॉपिक पे ही क्वेश्चंस बनेंगे घुमा फिरा के, चाहे आप 20 बना लो चाहे 50 बना लो, राइट? लेकिन आंसर हमेशा वही रहने वाला है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा हमेशा इंटरव्यू में, एग्जाम में, बट आंसर सेम ही रहेगा, टॉपिक चेंज नहीं होगा, राइट? अब ये देखते हैं। ए कंपनी हैज मीडिया and application files. The company has media and application files, right, that needs to be shared internally. Internal sharing करनी है। Users currently are authenticated using Active Directory and access the files from a Microsoft Windows platform. The CEO wants to keep the same user permissions but wants the company to improve the process as the company is reaching its storage capacity limit, right? So देखिए इसने विंडोज सर्वर की बात कर दी यहाँ पे। अब विंडोज सर्वर कह दिया, दूसरा कह रहा है शेयर्ड करना है, शेयरिंग आ गई, तो क्या होगा आंसर? आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर, टाइप कीजिए, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला कहता है S3, S3 ऑब्वियसली नहीं होगा, आंसर इज बी, ऑब्वियसली आंसर इज बी, करेक्ट, 100% करेक्ट, राइट? विंडोज हो गए, दूसरा शेयरिंग हो गई, परफेक्ट आयुष। आइए देखते हैं। A company is moving its legacy workload to AWS cloud. The workload files will be shared. Workload की जो files हैं वो share होंगी, shared, appended, and frequently accessed through Amazon EC2 instances and frequently accessed through Amazon EC2 instances. When they are first created, the files will be accessed occasionally as they age, right? तो सबसे पहले तो Amazon EC2 से इंस्टेंसेस से एक्सेस होंगी जब वो पहले क्रिएट होंगी, और फाइल विल बी एक्सेस्ड ओकेजनली एज द एज। व्हाट शुड अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रिकमेंड? तो आपने देखा एक क्वेश्चन आता है आपके इंटरव्यू में कि S3 में जो डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा, उस डेटा को आपको बेस्ट पॉसिबल स्टोरेज कॉस्ट के हिसाब से शेयर करना है। तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको डेटा का एक्सेस पैटर्न पता हो। इस क्वेश्चन में हमें एक्सेस पैटर्न पता है, और दूसरा क्या आपको हेल्प करेगा उस बेस्ट कॉस्ट को अचीव करने में या मिनिमल कॉस्ट को अचीव करने में, दैट इज स्टोरेज क्लासेस, राइट? स्टोरेज क्लास चेंज होगी। तो पहला कह रहा है EBS में रखेंगे, पहले कह रहा है Amazon EC8 EBS में रखेंगे, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सेस्ड ओकेजनली, ये यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है। स्टोरेज गेटवे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, EFS का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर ऑब्वियसली। तो बहुत बार इंटर एग्जाम में क्या होगा, आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आंसर कौन सा है,
बट आपको ये पता होगा कि ये 3 आंसर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप आंसर पे 100% श्योर ना हो तो आप दूसरी तरह से सोचना शुरू कर दें कि भाई कौन से आंसर्स नहीं हो सकते किसी भी हाल में। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले 3 तो हो ही नहीं सकते। मैं अगर डी पे नहीं भी जाता डायरेक्टली तो भी आप देख सकते हैं आंसर इज डी। आइए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। A company is designing a website that uses an Amazon S3 bucket to store static images. The company wants the future requests have tester response time while reducing both latency and cost. Which service configuration should a solution architect recommend? So ये कह रहा है कि designing a static website which is on S3, कंपनी चाहती है कि कस्टमर्स को लेटेंसी ना आए और कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता ग्लोबल कस्टमर्स तो एक सेकंड में आप जाके चूज कर लेते क्लाउड फ्रंट, बट मुझे नहीं लगता क्लाउड फ्रंट के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन काम करेगा क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट है। दूसरा वो स्टैटिक वेबसाइट S3 में ही होस्ट होगी, राइट? आंसर इज ऑब्वियसली दिस, राइट? ठीक है जी, क्लियर है।